Honorary Secretary NAR India, Mr. Nishit Shah, Treasurer NAR India, Manish Brahmabhat, President Ahmedabad Realtors Association, Anuj Shah, Secretary Ahmedabad Realtors Association, Chandresh Vitlani ji, Vice President NAR India, Amit Chopra ji, Vice President NAR India. કોઈના માટે જ્યોત પ્રગટાવવાથી આપણા પોતાના માર્ગ પર પણ અજવાળું થાય છે. આપ સૌ દીપ પ્રાગટ્ય માટે આજના કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત આપણે જ્યોતિ પ્રગટાવવાથી કરીએ. શુભમ કરોતિ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદા શત્રુ બુદ્ધિર વિનાશાય દીપ જ્યોતિર નમોસ્તુતે. आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते. अन्यने थाय એટલું મદદરૂપ થવું. ચોથી વાત કરી કે ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને ભક્તિ દ્રઢ કરવી. અને પાંચમી વાત કરી પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવું. આ પાંચ વાત જીવનનો હેતુ છે. આ સમજાવવા માટે જ આપણી આજની આ કોન્ફરન્સ અને અમારા પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ નગરની ટૂર છે કે જીવનનો સાચો હેતુ આપણને ખબર પડે. આપણને ખબર નથી એવું નથી. અમે વાત કરી કોઈ જ નવી નથી, આપણને બધાને ખબર છે. પણ આજે અહીંયા આવવાથી વધારે દ્રઢ થશે એવી આશા સાથે આપણે અહીંયા આવ્યા છે. તો પાંચ હેતુ જો આપણા દિવસમાં સચવાતા હોય, નાની મોટી આપણે ક્રિયા કરીએ, કાર્ય કરીએ, વિચારોનો અભિગમ રાખીએ, એમાં આ પાંચ હેતુમાંથી કોઈ પણ એક સમયે એક હેતુ સચવાતો હોય, બે હેતુ સચવાતા હોય, તો સમજવાનું યુ આર ઓન ધ રાઈટ ટ્રેક ઓફ યોર લાઈફ. તમે જીવનના સાચા માર્ગ પર છો. આ પાંચમાંથી કોઈ એક વાત કોઈ પણ સમયે દિવસમાં સચવાતી હોય તો વ્યક્તિગત જીવનમાં આ અભિગમ રાખવાનો કે આ પાંચ મુદ્દા ઉપર મારે ફોકસ કરવાનું છે. તે વ્યક્તિગત જીવનનો અભિગમ છે. તમારામાંથી કદાચ કોઈને વ્યસન હશે. એ બીજો મુદ્દો પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે કહ્યો. કારણ કે પહેલો મુદ્દો આપણે ચર્ચવાનો નથી. બધાની સાંસારિક જવાબદારીઓ બરોબર આપ નિભાવો છો, પરિવારને ખૂબ સાચવો છો, તમારા સંતાનોના અભ્યાસ માટે ખૂબ ચિંતિત છો અને ખૂબ સારો અભ્યાસ કરાવો છો. પણ જે સત્શાસ્ત્રો પ્રમાણે પવિત્ર જીવન જીવવું એમાં વ્યસન મુક્તિ. અહીંયા તમને એક્ઝિબિશન્સમાં એક એન્ટી એડિક્શન ડ્રાઈવ માટે અમારું વ્યસન મુક્તિનું આખું એક કેમ્પેઇન છે. અને અમારા પીઆર ગાઈડ્સ તમને કેમ્પેઇનમાં ત્યાં વ્યસન મુક્તિમાં તમે ફિલ્મ જોશો ને તમારા રૂણ આવવા થઈ જશે. યુ વિલ બી ઇમોશનલી ટચ્ડ. અને રોજ સેંકડો લોકો પોતાનું વ્યસન ત્યાં છોડી દે છે. તમે વ્યસન મુક્ત એમાં અમને કોઈ સ્વાર્થ અને લાભ નથી. એમ આઈ ક્લિયર અબાઉટ ઇટ? તમે એવા પણ જોયા હશે કે 50 વર્ષ સુધી રોજની 50 સિગરેટ પીવે અને કાંઈ ના થાય તમારી સાથે હસતા રમતા હોય. અને એવા પણ જોયા હશે કે 5 સિગરેટ પીતા હોય કે 2 તમાકુની પડીકી ખાતા હોય પણ 2 વર્ષમાં એને કેન્સર લાગી જાય. 2 જોયા છે ને? આખામાં તમારી બ્લડની રિએક્શન સિસ્ટમ ક્યાં છે તમને ક્યાં ખબર છે? કેન્સર લાગી જશે. ભારતમાં દર કલાકે 82 લોકો, રોજના 2000 લોકો વ્યસનથી થતા કેન્સરથી મરે છે. એમાં આપણો વારો ક્યાંક આવી જશે તો ભગવાને આપણે અહીંયા બેઠા છે બધાને એક તંદુરસ્ત શરીર આપ્યું છે, આપણે બધાને એક સારું મન ને સારી બુદ્ધિ આપી છે. અહીંયા બેઠા હતા તમામ સામાન્ય મનુષ્ય કરતા આપણને સમૃદ્ધિ ભગવાને વધારે આપી છે, આપણને સ્કોપ અને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વધારે આપી છે, આટલો સુંદર પરિવાર આપ્યો છે. એ આટલી સુંદર બધી વાતો એક 50 પૈસાની પડીકીની સામે ત્રાજવેને હોડમાં ના મૂકી દેવાય. અને મૂકે તો એ મૂર્ખ છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ શબ્દો બોલતા કે વ્યસન કરે ને મૂર્ખ છે. पूरे NAR के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी स्टार्टिंग विद चंद्रेश भाई जिन्होंने
कोऑर्डिनेट करके मुझे बुलाया। ऑफ कोर्स समीर भाई आप मिल चुके हैं, बट ऑल द ऑर्गेनाइजिंग टीम इंक्लूडिंग कमल भाई, आई एम श्योर आधा से ज़्यादा लोग यहाँ पे कमल भाई के लीडरशिप की वजह से आए हैं। थैंक यू कमल भाई, थैंक यू चंद्रेश भाई। शुरू करने से पहले एक छोटी सी घटना बताऊंगा। ज्ञानवत्सल स्वामी जी भी अभी यहाँ पे थे। मेरा सबसे पहले BAPH के साथ जो जुड़ा हुआ, दैट वाज ड्यूरिंग द 75th बर्थडे। लो क्वालिटी नहीं बनाएंगे, ये चारों पॉइंट्स यहाँ से लेके जाना। स्वच्छ, नाइस डिजाइन, शुद्ध, पवित्रता और दिव्यता। और भारत एक ऐसा देश है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट बना लो, वहां पे एक मंदिर होना चाहिए घर के अंदर भी, isn't it true? और ऐसा कहते हैं कि जब तक घर पे भगवान की स्थापना नहीं होती वो घर शुरू नहीं होता, ग्रह स्थान, isn't it? तो इसीलिए हाउस वार्मिंग सेरेमनी हम तो अग्नि देवता को लेके शुरू करते हैं। तो अभी से आप जो काम करो, ऐसा करो कि आने वाले 2000 साल आपका नाम याद रखें। और ये कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं उसका फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा। ऐसा मत सोचो कि भाषण दे रहे हैं। तो मेरा सेकंड सवाल, और ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको मैं पूछूं कि आपको अगर 3 हीरे चाहिए, 3 डायमंड्स, एंड वेदर यू वांट 300 मार्बल्स, वो गोटी खेलते थे ना पहले, व्हाट विल यू चूज? 3 डायमंड्स और 300 मार्बल्स, व्हाट विल यू चूज? बराबर है। तो आज मैं 3 डायमंड दूंगा, क्योंकि कितने भी बोलो 1.5 घंटे भी कम है, और एकदम सिंपल रखूंगा। चाणक्य नीति ऐसा विषय है जितना भी आप सोचो समझो पूरा नहीं होता। सब लोग बोलते हैं सामदान दंड भेदा, सुना है? दुश्मन को खींचता है, पता है? एनिमीज अ फ्रेंड, पैसे को खींचता है। बहुत सारे चाणक्य नीति है, लेकिन मैंने क्या सोचा, आज ये लेक्चर आप याद रखोगे केवल 3 वर्ड्स, एंड बिलीव मी दिस 3 वर्ड्स में चाणक्य के बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। So I'll tell you what the 3 words are and I'll explain that to you. और 20 मिनट में मेरा स्पीच खत्म कर दूंगा। So the 3 words शायद बहुत लोगों के लिए नया भी होगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, जरूरत है तो लिखिए और रिकॉर्ड करना है कर लीजिए। So अगर चाणक्य के स्ट्रैटेजीज को आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज करना है, चाणक्य विजडम ऑफ स्ट्रैटेजी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये 3 शब्द आपकी जिंदगी में उतार दो। पहला शब्द है आन्वीक्षिकी। क्या 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 बताओ? आन्वीक्षिकी। सेकंड शब्द है वृद्ध संयोग। थर्ड शब्द है मित्र संबंध। फिर से बोल दो, आन्वीक्षिकी, वृद्ध संयोग, मित्र संबंध। ये आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में यूज कर सकते हो। अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। कितने लोगों ने आन्वीक्षिकी सुना है? मैंने भी नहीं सुना था 22 साल पहले। तो ये क्या है? चाणक्य कहते हैं आन्वीक्षिकी इज प्रथम विद्या एंड परम विद्या। मतलब क्या? हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, तो क्या सीखते हैं? ABCD, क ख ग घ, 1 2 3 4, isn't it? बट चाणक्य ने अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको क्या सिखाया बताया? सोचना कैसे है। आर यू थिंकर्स और आर यू डूअर्स? आप सोचते हो या करते हो? सर हम करते हैं। अरे सोच के करो और करके सोचो। ये बिजनेसमैन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, सोच के करना और करके सोचना। ये हम क्या करते हैं पता है आपको? वी डोंट नो हाउ टू थिंक, वी ओनली वरी। चिंता मत करो, चिंतन करो, पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे जितने लीडर्स बैठे हैं ना, अगर वो चिंता करने लगे तो पूरा इंडस्ट्री की बैंड बज गई। लेकिन वो करते क्या? चिंतन। बहुत छोटा फर्क है। और चाणक्य ने हमें सिखाया कि कैसे चिंतन करना चाहिए। आप चिंतन करते हो? चलो आज करते हैं योगा, या फिर जिम में जाते हैं, या वॉकिंग करते हैं, कुछ ना कुछ। ये हो गया फिजिकल लेवल के लिए, शारीरिक के लिए। एंड हमारे जो ऋषि मुनि उन्होंने कहा हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके 4 अंग होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। आपके अंदर 4 है, बाहर दिखता है 1, बहुत अच्छा ड्रेस डालता है, फिट है, ठीक है, बी फिजिकली फिट, बट मेंटली काम, इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट एंड स्पिरिचुअली इवॉल्व, देन ओनली योर पर्सनैलिटी विल कम आउट। फिर से बोलता हूं, फिजिकली फिट,
mentally calm, intellectually brilliant and spiritually evolved, तब आपकी पर्सनालिटी झलकती है। स्वामी विवेकानंद, मुझे याद है एक बार लंदन में थे, तो उधर क्या है, कोट वोट डालने का कल्चर है, हम लोग भी लेके आए। तो उनको किसी ने बोला आप बहुत बड़ा लेक्चर देने वाले हो तो आपकी कोट सिलाते हैं। तो बोला क्यों? यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ अपने धोती और अपने अंग वस्त्र में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे द कैरेक्टर इज डिसाइडेड बाय द टेलर। आपका कलर कौन सा है, आपका मटेरियल क्या है, वो सब। एंड स्वामी विवेकानंद ने कहा इन इंडिया योर कैरेक्टर इज नॉट डिसाइडेड बाय द टेलर, इट इज डिसाइडेड बाय योर स्पिरिचुअल गुरु। और वो बोलते ये अच्छा बंदा है, दैट इज मैन गुड कैरेक्टर। अगर आपके माँ पिताजी बोले बेटा बेटी आप अच्छा ड्रेस डालते हो, गुड, लेकिन बोलते अंदर से ही बेकार है, ओके। तो हमको ये पता है कि फिजिकल फिटनेस थ्रू लॉट ऑफ एक्टिविटीज, योगा से लेके सब कुछ है। मेंटल फिटनेस के लिए आपको ध्यान करना है, पूजा करना है, जो भी है, तो माइंड विल बिकम काम। और जिस बंदे में श्रद्धा है वो कभी हिलता नहीं। अभी इंटेलेक्चुअल फिटनेस, कैसे डिसीजन लेना है, स्पेशली लीडर्स, आपको आन्वीक्षिकी का उपयोग करना है। आन्वीक्षिकी मतलब क्या, ये आपको समझाता हूं। पहला शब्द, चाणक्य ने जब अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा तुम लोग जो है ना, केवल अपने आप को राजा मत समझो, राजा के जैसे सोचने को शुरुआत करो। डोंट जस्ट बिकम ए किंग, थिंक लाइक ए किंग। राजा बाहर से नहीं बनता, अंदर से बनता है पहले। तो दिस इज कॉल्ड लीडरशिप थिंकिंग। तो उन्होंने उनको एक विद्या सिखाई जिसका नाम है आन्वीक्षिकी। मैंने उसके ऊपर किताब भी लिखी है, गुजराती में पंछे, यू कैन गूगल इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट माय बुक। आई टेल यू संस्कृत श्लोक का, बाद में आराम से समझ लेना। सांख्य योग लोकायत इति आन्वीक्षिकी, प्रथम विद्या इति आन्वीक्षिकी। अगर आपको अच्छा लीडर बनना है, सक्सेसफुल बनना है और अच्छे डिसीजन लेने हैं, तो सांख्य योग लोकायत, ये अपने भारत की फिलॉसफी है। बहुत सारे योग वगैरह है फिलॉसफी, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इफ यू कैनॉट थिंक इन नंबर्स यू कैनॉट बी ए लीडर। संख्या पता है, आंकड़ों में बात करो। आप आंकड़ों में सोचते हो, इफ यू कैन थिंक इन नंबर्स यू आर ए गुड लीडर। और आजकल दुनिया वही कर रही है ना, डेटा एनालिटिक्स कर रही है कि नहीं कर रही है? और जो डेटा के साथ काम करता है वो दुनिया में नंबर 1 हो सकता है, अमेजॉन, एप्पल। सो मैं कहूंगा कि स्टार्ट थिंकिंग योर बिजनेस इन नंबर्स, एंड नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू मैथमेटिक्स फ्रॉम 0 to infinity and everything in between। तो ऐसा मत सोचो कि मैथ्स बहुत हार्ड है, मैथ्स का सिखाने का तरीका हार्ड है, isn't it true? But maths is a very easy subject। हमने कितने सारे बिजनेसमैन देखे, ज्यादा पढ़ा लिखा ही नहीं है, बट दे नो नंबर क्रंचिंग। हर दिन 1 घंटा अब डाटा लेके बैठो एंड एनालाइज द डाटा, आपके फील्ड में, आपके बिजनेस में, और आंकड़ों में सोचो और आंकड़ों में बात करो। बिलीव मी, यू विल बिकम इंटेलिजेंट। फिर से कहता हूं, इफ यू कैन थिंक इन नंबर एंड स्पीक इन नंबर्स यू विल बिकम एन इंटेलिजेंट डिसीजन मेकर। आन्वीक्षिकी बहुत बड़ा विषय है, यहाँ पे छोड़ दूंगा। द सेकेंड वन इज वृद्ध संयोग। लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करते हो? कोई भी प्रॉब्लम हो, बिजनेस में हो, कर तो क्या करते हो? बस ये है, हम लोग क्या करते हैं बताए आपको, कि हम दोस्तों को पूछते हैं। दोस्तों को भी पूछो, लेकिन वृद्धों को पूछो। हमारे इंडिया में सब बोलते हैं ना, वी आर ए यूथ कंट्री, 35% ऑफ इंडिया इज बिलो 35 ईयर्स, सब बोलते हैं ना आंकड़े, बट पीपल डोंट रियलाइज इट, वी ऑल्सो हैव ए बिग एजिंग पॉपुलेशन, इजंट इट ट्रू? हर व्यक्ति के घर पे नाना नानी, दादा दादी है, हम उनके साथ टाइम नहीं बिताते और हमको लगता है इनको कुछ आता नहीं है, वो बेचारे थोड़े व्हाट्सएप कर लेंगे। ऐसा नहीं है। चाणक्य कहता है कि अगर आपको जिंदगी में कोई भी बड़े या छोटे निर्णय लेने हो तो वृद्धों के साथ रहो। मैं आपको एक बिजनेस एग्जांपल देता हूँ। हमारे गुजराती फ्रेंड है बॉम्बे में, उनकी ज्वेलरी की कंपनी, तो धंधा नहीं चल रहा था, पैंडेमिक में सबकी प्रॉब्लम हो गया ना, सबका ज्वेलरी कौन खरीदता है। पैटर्न में एक परंपरा है
कि आप बिजनेस चालू करते हो तो अपने घर के एक महिला को उसका शेयर होल्डर बनाओ। ये टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। ये करते हो आप लोग? एंड नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्पस, इफ यू हैव योर मदर, योर वाइफ, योर डॉटर और एनीबडी इन द फैमिली, वी गेट द लक्ष्मी एनर्जी डे 1। तो उसने जब कंपनी चालू किया था 25 साल पहले, तो मम्मी के नाम पे थोड़े 10 शेयर्स बना के रखे थे। तो अभी सोचा कंपनी बंद कर रही है, सीए से बात कर लिया, सबको अभी नहीं चलता, मेरे से नहीं होता, मैंने अपने लिए कमा लिया, बच्चों के लिए कमा लिया, बंद करो। अभी 300 लोग का क्या करो, मेरा नसीब नहीं है, ठीक है चलो ट्राई किया। बट वो कहते हैं ना, मम्मी को जाके बोला उसने घर पे, मम्मी 85 ईयर्स ओल्ड, वृद्ध संयोग गए और क्या कहा उनको कि मम्मी जी शायद मुझे बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो क्या हुआ बेटा बताइए, शू थे गयो? तो उन्होंने बोला कि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। वो हंसने लग गई। ये कोई रीजन है क्या बिजनेस बंद करने का? इज दैट ए रीजन टू शट डाउन द कंपनी? तो देखिए, शी इज नॉट ए बिजनेस वुमन एंड शी डजंट गो टू ऑफिस। लेकिन एक वृद्ध आपको क्या ज्ञान दे सकता है, सुनिए। मम्मी ने क्या बताया, बेटा अगर आपका नुकसान हो रहा है तो किसी का फायदा भी हो रहा है कि नहीं? और उसने बताया कि हम लोग बिजनेस परिवार से है कि नहीं? बहुत सारे पीढ़ियां हम लोग अलग अलग बिजनेस किए। तुम ज्वेलरी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन धंधे का एक उसूल याद रखना, कभी नुकसान नहीं होता, किसी का नुकसान होता है, किसी का फायदा होता है। तो आज तुम्हारा टाइम नीचे जा रहा है, पर याद रखना 300 लोग आपके परिवार है, आपके एम्प्लॉय नहीं है। वो वापस ऑफिस गया और 300 लोग को बुला के बोला 3 महीना आप मेरा साथ देना। टुडे ही हैज ट्रिपल्ड हिज बिजनेस आफ्टर द पैंडेमिक। तो शायद आपके जो बुजुर्ग है उनको बिजनेस नहीं समझ में आता है, लेकिन बिजनेस के तत्व समझ में आते हैं। एंड लेट मी टेल यू, बिजनेस इज इक्वल टू रिलेशनशिप्स, इजंट इट ट्रू? तो रिलेशन जो मेंटेन करके रखता है वही अच्छा व्यापारी बन सकता है। अभी थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, वो है मित्र संबंध। जब भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, दोस्तों के साथ रहना। चाणक्य खुद कहते हैं, नेवर फाइट ए बैटल अलोन, टेक सम फ्रेंड्स अलोंग। पंजाब में वो दिखता है, अकेले नहीं जाते हो, 4 लोग को लेके जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है, वी हैव बिकम वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। मेरा प्रॉब्लम, अरे तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम। एंड दैट इज व्हाई वी रिक्वेस्ट NAR should never be treated as his company or his association. It is our association. अकेले है तो मर जाएंगे, साथ में है अकेले है तो मर जाएंगे, साथ में है तो जी जाएंगे। एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे नॉन सर्कल में एक लड़की ने सुसाइड किया, नॉट ड्यूरिंग पैंडेमिक, बहुत पहले की बात है। तो हम लोग सब मिले थे, ऑल दोस थिंग्स। एक लड़का था हमारे ग्रुप में और रो रहा था। तो हाँ, दुख होता है हमारे सर्कल का कोई अगर आत्महत्या करता है तो, लेकिन मतलब मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि वो लड़की ने मुझे सुसाइड करने के पहले फोन किया था और मैंने फोन नहीं उठाया। आई कुड हैव सेव्ड अ लाइफ इफ समबडी कॉल्स मी। सब लोग बिजी है ना, लेकिन दोस्तों के लिए जो बिजी होता है ना, वो धंधा नहीं कर सकता। देखिए, हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन यू कुड बी द सॉल्यूशन फॉर समबडी एल्सेस प्रॉब्लम। तो अगर कोई सामने से आपके ग्रुप में आपको फोन करता है, मिलना चाहता है, आपको लगेगा ये क्या छोटा आदमी है, इससे क्या बात करना, बिलीव मी, वो कल का नारायण मूर्ति हो सकता है। इजंट इट ट्रू? इसका मित्रों के साथ संबंध बना के रखना। देखिए, आपको एक कहावत सुनी होगी आपने, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बराबर है? और फाइनली बिजनेस इज अबाउट नसीब ऑल्सो। किसका नसीब कब चमकेगा पता नहीं। आप शायद बड़े हो, लेकिन हो सकता है कि कोई आज छोटा हो, लेकिन वो छोटा वाला भी शायद आपके ऊपर देखता है। यू मे बी अ रोल मॉडल फॉर समबडी एल्स, बट हेल्प हिम व्हेन यू आर बिग, बिकॉज टुमारो यू मे बिकम स्मॉल and you may require his help. Isn't it true? Yes. तो इसलिए मैं कहूँगा जिगीशु मतलब क्या आपको बताता हूँ। चाणक्य बोलता है, अगर मैं लीडर तैयार करता हूँ तो वो वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। डोंट थिंक बिग,
थिंक बिगेस्ट। फिर से दोहराता हूं, हमारी एक पीढ़ी खत्म हो गई। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, और फिर नीचे आके बोलते हैं स्मॉल इज बिग। स्मॉल कैनॉट बी बिग, बिग कैनॉट बी योर गोल। यू हैव टू बी बिगेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट 10 years। आप छोटा मोटा क्या सोच रहे हो यार? और मेरे को, मैं आपको बोल रहा हूं, सोच बड़ी होनी चाहिए, भले काम छोटा हो। सोच बड़ी होनी चाहिए, भले काम छोटा हो। कैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरा एक ऑफिस है बॉम्बे में, ज्यादा नहीं है, 2000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन हमने क्या किया आपको पता है? ऑफिस बनाने के टाइम वी टुक द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गूगल, एप्पल एंड फेसबुक। आज हमारे ऑफिस में आओगे तो छोटा है लेकिन नंबर 1 इन द वर्ल्ड माना जाता है। तो आपका छोटा कुछ नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। तो विद दैट आई लाइक टू से थैंक यू सो मच। In just 8 years, this faraway place turned into a futuristic residential destination for the elites of Ahmedabad. In a world of concrete jungles, that was in perfect harmony with nature. A world away from chaos, where peace meets prosperity. A happy place for 1,500 families, where living is a blessing and honor, where life feels grand, where every moment is filled with pride, where luxury is not just a word, where dreams come true, where every need of yours is taken care of. आप लोगों की आवाज मेरे तक क्यों नहीं आ रही है? आपके हाथ में माइक है। Are you excited? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हर्षवर्धन जी आप सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और इस पावन धरती पे आके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, जहां प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी समारोह में हम सब लोग उपस्थित हैं। तो एक बार जोरदार तालियां और जबरदस्त जोश के साथ हम इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी आप लोग करेंगे तो जल्दी अपन बात को पूरा करेंगे। तो जब मेरी बातों से सहमत हो तो यूं करिए, सहमत नहीं हो तो यूं भी चलेगा, लेकिन यूं नहीं चलेगा। तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आप क्या नहीं समझे। तो शुरुआत कर सकते हैं स्वामी जी। यस। आप सब लोगों के गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के प्रेम से मैं इस सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। और रियलिस्टर्स हैं, सारे रियल एस्टेट के व्यापारी हैं, सारे बड़े योद्धा हैं। तो मैं चाहता हूं कि उस भूमिका को अपने भीतर इंस्टॉल करिए, उस कैरेक्टर में आइए और उसके बाद अपने जीवन की भौतिक उन्नति में जो साधन आपने चुना है वो साध्य तक लेके जा सके, उसमें मैं आपका निमित्त बनना चाहता हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और मैं जिस सब्जेक्ट पे आपसे बात करने वाला हूं, लैपटॉप किस तरफ है? सेलिंग मशीन। जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो, फोटोग्राफ में जरूर मजा आता है, लेकिन इसके शब्दों के पीछे के भाव में जाना होगा कि आप और हम अपने बिजनेस को एक जबरदस्त लेगेसी में कन्वर्ट कर सके। उसके लिए कौन सी चीजें चाहिए? एक है सेलिंग से हम रियल एस्टेट सेल्स को टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले युग के परिवर्तनों को सहज महसूस करते हुए अपने भीतर सही समय पे परिवर्तन करते हैं, तो फिर धंधा मशीन की तरह चलने लग जाता है। तो आप और हम एंटर करते हैं सेलिंग मशीन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। इस दुनिया में सफल और असफल लोगों का जो रेशो है, ये वर्ल्ड